Hello learners, welcome back to the video, and in our today's video we are going to continue with our today's lesson, that is number systems. So if you remember that in our previous video we talked about this lesson in little detail, right? I gave you the introduction about the lesson. So now we are going to continue the lesson. So in our previous video I explained to you how do we change a bar number into a p by q form, that is a fractional form. So let us quickly talk about it further. So now we are going to learn how to change a 3-digit bar number into a p by q form. So let us learn. So let us take the number as 21.123 bars. So I've changed the color. Wait, let me change it back to black. So 21.123 bar into p by q form. How will we do it? Yes, we will take it this number as x. So let x equals to 21.123 bar. Remember. Now, क्या डेसिमल के एकदम बार है? Is there a bar direct after the decimal? If yes, then mark this as equation 1. Okay. So now कितने पे बार है? Yes, 3 पे. So 1000x equals to 21. 1, 2, 3. We will shift this in front. Okay. So all the digits will be shifted in front. So 21123.123 bar. Mark this as equation 2. Now what? 2 minus 1. Very good. Now I can see that you are remembering it very nicely. So now 1000x, that is 2 minus 1. So दोनों का LHS को माइनस करोगे और RHS को माइनस करोगे, राइट? So 1000x minus x equals to 21123.123 bar minus 21.123 bar. So 123 bar, 123 bar cancel. Now next will be 999x, that is 999x equals to 21102. यही आपका आंसर आएगा. फिर x इधर हो जाएगा. So ये जो है वो इधर चला जाएगा according to equation, linear equation. So 21102 upon 999. Now if you cancel this out, so this will be 7034 upon 333. Okay, how will we cancel it out? By 3 से कैंसिल करके देख लो, आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट? सो आपका जो 21.123 बार है वो हम कैसे लिखेंगे p by q फॉर्म में? 7034 अपॉन 333. क्लियर टू यू ऑल? ओके, ग्रेट. अब हम बढ़ते हैं आगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस नंबर. Now see, 1.23 bar into p by q form. How will we do this? Let us see. Here we have the bar on only 3, not on 2. We do not have a bar on 2. So how will we do it? Now let us see. First of all, I have always told you that what you are going to do, you will take this number, whatever number is given to you, as x, right? So let us take this as x again. So let x equals to 1.23 bar. Clear? x ले लिया आपने. अब आप पूछो कितने पे, क्या डेसिमल के एकदम बाद बार है? क्या है? डेसिमल के एकदम बाद 2 है. 2 पे तो बार नहीं है. So if your answer is a no, then you are not going to mark it as equation 1. Okay? अब पूछो कितने पे बार नहीं है. Okay, एक सेकेंड. Wait. Yes. Now ask yourselves, कितने पे बार नहीं है? On how many the bar is not there? So on how many? 1. So how many zeros will be there? 1 0 will be there. So 10x. Clear? 10x equals to, now shift it to this side, 12.3 bar. Clear? Now अब पूछो क्या डेसिमल के एकदम बाद बार है? अब तो है. नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन 1. अब पूछो कितने पे बार है? कितने पे बार है? कितने पे? 1 पे.
अब आप इसी 10x में जितने पे बार है, ठीक है, आई रिपीट, इसी 10x में जितने पे बार है, 2 पे 3 पे, उतने ही जीरो आप ऐड करोगे। तो अब क्या हो जाएगा, फिर 100x हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 2 3 को इधर शिफ्ट करोगे, 1 2 3.3 बार। नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन 2। समझ आया? अब क्या पूछोगे, कितने पे बार है, तो कितने पे बार हुआ, जितने पे बार, अगर 1 पे बार है तो उतना जीरो आप इस पे ऐड करके उसको नीचे लिखोगे, 100x इक्वल्स टू 123.3 बार। इसको आप क्या मार्क करोगे, इक्वेशन 2। नाउ 123.3 बार इज इक्वल्स टू क्या था, 100x, राइट? ये आपकी इक्वेशन 2 थी, सो 2 minus 1, okay, I have written this on different sides, you can do this, 100x equals to 123.3 बार, okay. Now 2 minus 1, दोनों का LHS और RHS एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो, 100x minus 10x equals to 123.3 बार minus 12.3 बार, 3 बार से 3 बार कैंसिल। Now 100x minus 10x is 90x equals to 123 minus 12 will be 111, that is 111. Okay, now x will be equals to what, 111 upon 90, that is 111 upon 90. Cancel this out, you will get 37 upon 30. How? By 3. Okay, 3 से cancel out करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37 upon 30. Is this clear to you all? Yes. Now I hope changing into P by Q form, okay, changing into P by Q form is clear to you all. Okay, so now let me give you a very brief introduction about the other topics of the lesson. Okay, so now let us talk about irrational numbers. Now what are irrational numbers? So we talked about rational numbers in our previous classes, right? Rational numbers we all know, fractional numbers. But what are irrational numbers? ठीक है, अब इर लगाने से क्या होगा, इसका मीन, ठीक है, व्हाट आर इरैशनल numbers? Very important topic it is. Now what are these numbers? Okay, so the numbers are the numbers which are neither repeating nor terminating. Means, अब मैंने आपको बताया था, एक होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन ऐसे नंबर्स जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, स्टॉप भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे इरैशनल numbers. Clear to you all? So irrational numbers are the numbers which are non-repeating and non-terminating after decimal, यानी कि 0, for example हम ले लेते हैं 2.12, ठीक है, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2, मतलब पहले 2 बार 2, फिर 3 बार 2, फिर 4 बार 2, फिर 5 बार 2, ऐसे जो किसी पैटर्न में है, ऐसे नहीं, ठीक है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। अब इसमें एक सेकेंड, यस, सो अब इसमें क्या हो रहा था कि आपका 2 पहले 2 बार आया, फिर वो 3 बार आया, तो अब आप बार नहीं लगा सकते 1 और 2 पे, क्योंकि एक बार ही 1 आ रहा है, फिर दोबारा 2 आ रहा है, फिर दोबारा 2 आ रहा है, लेकिन वो एक उसमें जा रहा है, एक सीरीज में जा रहा है, राइट? सो आप उसको नहीं लिख सकते बार के फॉर्म में, राइट? एम आई क्लियर टू यू ऑल? एम आई क्लियर टू यू ऑल? ओके, ग्रेट, फाइन। नाउ ऐसे नंबर्स होते हैं कौन से? इरैशनल। इरैशनल नंबर्स को ही हम रूट में भी लिखते हैं, √2, √5, √3। अब देखो, बात समझ आई? अब देखो, अगर मैं लिखूं √8,
रूट 8। क्या ये सही है? यस मैम, बिल्कुल सही है। हम किसी भी नंबर को रूट में डाल दें, रूट 9, रूट 8, बट ये क्या होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं फिर। अब देखो रूट 8 कैसे बना, 8 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 से, है ना। 8 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 से, है ना। लेकिन अगर यही इन 2 इंटू 2 इंटू 2 के ऊपर मैं एक रूट लगा दूं तो क्या होगा कि मैं पेयर में, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ मैं 3 लिख दूं, ठीक है, ऐसे साइड पे छोटा सा 3 लिख दूं, ऐसे करके ऐसे 3, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 2 नहीं लिखा या कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। इतना तो आपको पता ही है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है आपने। अब अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख रही हूं, मतलब मैं पेयर में 2 को निकाल सकती हूँ, है ना। तो अब इस पेयर में मैं 2 को निकाल दूंगी, 2 रूट 2 बन जाएगा कितना, इक्वल्स टू रूट 8। तो रूट 8 एट द एंड क्या होता है, 2 रूट 2, ठीक है। और यही अगर ये क्यूब रूट हो, ठीक है, यही अगर ये क्यूब रूट हो, क्यूब मतलब क्यूब रूट 8, 8 क्या होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 की पावर 3 लिखते हो ना आप 8 को। तो अब क्या होगा, अब रूट को हटा के आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे तो आप ये तीनों लगा सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि बाहर क्या है, क्यूब, ठीक है। ये 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये एक पेयर एक वो बनेगा ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट बना और ये बाहर निकल गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। समझ आई बात, ऐसे होता है, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स के क्या एग्जांपल हुए, 2 रूट 2 सॉरी रूट 5, रूट 3। अब रूट 9 नहीं हो सकता इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब 9 कैसे बनता है, 3 इंटू 3 से, विच इज इक्वल्स टू रूट 9, है ना। 9 कैसे बनता है, 3 सॉरी आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, यस 3 है, तो ये कैसे हुआ, ये यहाँ क्या बनाएगा, 9 बनाएगा, 3 इंटू 3 9 बनाएगा, राइट। तो यही अगर आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो अंदर ये 3 इंटू 3 बनाएगा। कभी भी स्क्वायर रूट बनता है तो मैंने क्या बनाया, पेयर बनता है, पेयर बनाया तो ये बाहर निकल गया, इस साइड आ गया, रूट के लेफ्ट हैंड साइड आ गया। जैसे ही ये रूट के इस साइड आएगा तो ये 3 बच जाएगा, अंदर कुछ बचा, अंदर 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो 3 बचा। क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत नोट करने की है, दैट इज पाई जो होता है ना, पाई जो हमारा मैथ्स में यूज होता है, जिसकी वैल्यू हम 27 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, वो क्या होता है, हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई इज व्हाट, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। एम आई क्लियर टू यू ऑल? 3 अब आप बोलोगे मैम 3.14 तो उसकी हम वैल्यू लेते हैं और हम 22/7 उसको तो हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, लेकिन रिमेंबर 3.14 and 22/7 is only its approximate value. What is it? It is its approximate value. It is not the actual value of pi. pi की actual value नहीं है ये। हम पाई को सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरह देखते हैं, क्यों? सो दैट वी कैन सॉल्व आवर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगी, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, सो अब पाई की क्या वैल्यू है, यू नो, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नाउ यू नो व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, एंड इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे लाइक सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से हम इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज वी कैन नेवर सॉल्व इरेशनल नंबर्स। ओके, मतलब
वी कैन सॉल्व उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे. अगर हम उनको नहीं यूज करेंगे, सो वी विल सॉल्व देम इनकरेक्टली. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट.